Hello all of you. Today we'll discuss the Data Protection Bill, which was tabled in Parliament last year, 2019. Specifically, I'll call it Personal Data Protection Bill. Okay, so it's all about the personal data, the categories of data, and what all was working till now, and what is next in this bill. Okay, so so why the data protection bill and why the concept of data protection is required, why all of this was there, and why it is needed in the present context. Earlier, before this bill, the data protection was there under the IT Act of 2000. So before this, before data protection, we had the IT Act 2000, and the IT Act has all those rules which are laid down by the government regarding the data protection, regarding the sharing of data. But some of the loopholes were there, some of the uncovered aspects were there in this IT Act. The IT Act was again revised in 2011, and the new rules were added in 2011. So you can say rules under IT Act. Okay, 2000, and this was laid down in 2011. So 2011 के जो rules add up हुए थे, उसके हिसाब से अभी तक हमारा जो भी डेटा प्रोटेक्शन हो रहा था, जो भी सुपरविजन था, जो भी ऑडिट्स थे डेटा के ऊपर, जो भी डेटा शेयरिंग होती है across the nation among various entities. I'll come to that, what are those entities and what are those called. So अभी तक ये इंफ्रा था हमारे पास. अभी उसमें प्रॉब्लम क्या था, सबसे पहले ही देख लेते हैं कि इस आईटी एक्ट में दिक्कत क्या थी. सबसे पहली बात तो ये थी कि the government was not under the ambit of this IT Act. The government was never under the ambit of IT Act. And next thing, only the companies were there under the ambit of IT Act. तो सरकार इसके अंडर में नहीं थी. अब सरकार का इसके अंडर में होना क्यों जरूरी है? If you remember 2017, the Puttaswamy case, under that case, the Supreme Court ruled that the right to privacy is the fundamental right. So when the right to privacy is fundamental right, and a lot of data is stored, processed by the government, even a lot of data is collected by the government even. So in that case, the sheer responsibility goes to the government also, like that of the private company. So if all the companies, whether private or government, they are under the ambit of the data protection laws in the country, why not government should be brought in the ambit of this law? Because a lot of data is collected, processed, stored, transferred, shared by the government also. So the issue was raised after this verdict of Supreme Court, and then the government thought of putting this little in a framework manner, and raised a committee, called a committee for this, and just BL Sri Krishna committee was appointed because of this. So BL Sri Krishna committee was appointed, and in 2019 only the committee laid down its report, laid down its report in 2019. So 2019 में इसकी रिपोर्ट आती है. दिसंबर में ये पहुंच जाता है पार्लियामेंट, और उसके बाद अभी ये जो बिल है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है. मतलब लोकसभा ने कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिल जाता है, टेबल होता है लोकसभा में कैबिनेट अप्रूवल के बाद, और उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाता है फॉर अ वेरी डिटेल्ड वेरिफिकेशन, फॉर अ डिटेल्ड स्क्रूटनी. ठीक है, तो अभी ये सिलेक्ट कमेटी के पास है जो इस पे काम कर रही है. अभी आगे का प्रोसेस इसके बाद हमारे सामने आएगा. तो
अभी हम इसके बिल के कुछ ऐसे एस्पेक्ट को पढ़ेंगे जिन एस्पेक्ट्स से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, या फिर वो एस्पेक्ट्स जो डेटा प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, नॉट इन इंडिया बट ग्लोबली उनका बहुत ज्यादा वाइटैलिटी है और बहुत ज्यादा यूजफुल है वो। और उनके ना होने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के जो डेटा का जो उसको युग बोलते हैं data is like a fuel, and some of the people say that data is water. It should flow like water, but it's fuel because it's costly as fuel, and it's essential as fuel. ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्शन का ये जो बैकग्राउंड है बिल का, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या बैकग्राउंड है। उसके बाद आते हैं कि अभी जो नया हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है, विच इज द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में जो आया, तो उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं। पहले तो मैं बहुत नॉमिनल से फीचर्स की बात करूंगा जो पहले वाले एक्ट में नहीं थे। पहली चीज तो कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अंडर द एम्बिट। कंपनीज प्लस गवर्नमेंट दोनों के दोनों इसके अंडर में आ जाते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर भी सुपरविजन रहेगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है फॉर द डेटा प्रोटेक्शन। तो नए वाले जो जो पुराने वाले रूल्स थे उसमें गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ कंपनीज थी। अभी इसमें गवर्नमेंट प्लस कंपनी सारे के सारे हैं। नाउ ये तो हो गई बात कि भाई ये तो नया रूल आ गया, बट इसमें डेटा क्या होता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज डेटा, रेलेवेंस क्या है डेटा का, तो डेटा इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन, a collection of information which can be which can be stored, which can be spoken, which can be transmitted through any medium. Let's say I am telling you my name, I'm telling you my address by speaking only. That is also data. You can just write it at somewhere, or you can just remember it in your mind. तो वो भी एक तरह का डेटा है। डेटा कैन बी स्पोकन ऑल्सो। The transmission of data can be like this also, or it can be written on paper, it can be stored in some IT platform, on some computers, on some server, wherever the data can be stored. So it's all about the information. Now information can be as vital as it can, right? My biometrics, right? तो मेरे biometrics जो है, मेरा fingerprint, मेरा signature, my DSC, my digital signature, और मेरा लोकेशन, मैं कहां पर हूं उस टाइम पे, दिस कैन बी एज प्राइवेट एज इट कैन एंड एज एसेंशियल एज इट कैन। ठीक है, तो ये डेटा है, और इसके ये दो जो चीजें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी, एंड देन अनोनिमिटी। कितना डेटा अनोनिमस है। बहुत सारा डेटा होता है जो अनोनिमस होता है, कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। आइडेंटिटी का मतलब है कि मेरे डेटा पे मेरी आइडेंटिटी बेस्ड है, राइट। माय एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट is dependent upon my data, my name, my age, my gender, my sexual orientation. ये सारी चीजें मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे पे बेस्ड है। बट एनोनिमस डेटा क्या होता है, लेट्स से पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन सम सिटी, किसी डिस्ट्रिक्ट में किस टाइम पे कहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है, दिस इज एनोनिमस डेटा, राइट। इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग पर्सनल, इट इज नॉट पर्सनल टू एनीवन। सो एनोनिमस डेटा भी होता है। So if I say data is a collection of information, I won't be wrong. Collection of information, और किस तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ, like it can be a personal one, personal information, and it can be anonymous information, right? Like traffic, road traffic, traffic on road, अब इसका भी डेटा हो सकता है, राइट। तो ये दो तरह का हो गया, दिस इज डेटा। Now there is one more definition which comes in the bill, and it regularly comes in the bill, which is fiduciaries. Fiduciaries, okay. Now who are fiduciaries? Fiduciaries are those entities who are responsible for collection, storage, and maybe processing of data. अब कौन है fiduciary, इसका मतलब क्या है।
लाइक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फेसबुक, ओके। तो फेसबुक जो है वो डेटा कलेक्ट करती है आपसे, आपका डेटा आपसे लेती है। और कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है फेसबुक का, कि इफ फेसबुक कलेक्ट्स योर डेटा, दैट डेटा इज एंटर्ड बाय यू, ठीक है, सोनली बाय यू, एंड विद योर परमिशन, आपके परमिशन से आप डेटा अपना देते हैं और वो कलेक्ट करती है फेसबुक। Now, this data goes to Facebook, and after this goes to Facebook, does Facebook process this data? Does Facebook analyze this data? Yes, it does. How it analyzes your data? Let's say you have synced your phone contacts with Facebook, और आप आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स फेसबुक पे सिंक्ड हैं, तो वो फेसबुक आपको क्या दिखाएगा कि कुछ कुछ आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर फेसबुक पे इस नाम से हैं। यू मे बी trying to be friend with them, or you just want to be friend with them. These are the friend suggestions you have. So this is the processing of data. Next thing, it will always show you the friend suggestions. Likewise, you like some game on Facebook, if you like some kind of page in Facebook, Facebook will start showing you other pages of similar sorts as a suggestion, right? तो वो क्या कर रहा है, वो आपके likes और dislikes देख रहा है, उसके बाद उनको प्रोसेस कर रहा है, और उसके बाद बता रहा है कि आप ये भी शायद लाइक कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि फेसबुक इज नॉट ओनली कलेक्टिंग योर डेटा और स्टोरिंग योर डेटा, बट ऑल्सो प्रोसेसिंग योर डेटा एंड एनालाइजिंग योर डेटा, ठीक है। तो इस केस में फेसबुक बिकम्स द स्टोरेज, कलेक्शन एंड द प्रोसेसिंग एंटिटी। नाउ स्टोरेज कैसे होता है, फेसबुक, इफ यू सी, फेसबुक इज अ क्लाउड। ऑल्दो ऐसा नहीं लिखा होता है कि फेसबुक कोई क्लाउड है, you generally think about Google Drives or the cloud in iOS, but Facebook again is a cloud. If you see whatever photos you upload on Facebook, whatever videos you upload on Facebook, they are there on Facebook, right? If you see them after 1 year, or if you delete them from your phone or your laptops, from your devices, they will be there, right? वो फेसबुक पे तब भी रहेंगे, तो वो वहां से डिलीट नहीं होते। तो आपका जो डेटा आप अपलोड भी कर रहे हो वो भी उस क्लाउड फॉर्मेशन में स्टोर रह रहा है वहां पर, बट not necessarily the Facebook will process your data. Now, fiduciaries जो होते हैं वो तीनों काम करते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट कलेक्शन और स्टोरेज तो वही करेगा, प्रोसेसिंग शायद वो किसी और को दे दे, ठीक है। तो फिड्यूशरीज ये तीनों काम कर भी सकते हैं, कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, और वो नहीं भी कर सकते हैं। इट कैन ओनली डू कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, इट कैन गिव इट टू अ डेटा प्रोसेसर। तो डेटा प्रोसेसर एक तीसरी एंटिटी हो सकती है, फर्स्ट इज यू, सेकंड इज फेसबुक, एंड द थर्ड पार्टी इज डेटा प्रोसेसर, जो कि फेसबुक से डेटा कलेक्ट करता है, स्टोर्ड जो डेटा है, और उसको प्रोसेस करके वापस फेसबुक को देता है, या फिर वो आपको देता है। लेट्स से देयर वाज अ नेम कॉल्ड कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो नाम आया था वो इस सेंस में आया था कि फेसबुक का बहुत सारा डेटा जो था वो कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी जो है वो एनालाइज कर रही थी, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसर कैन बी अ डिफरेंट एंटिटी देन द फिड्यूशरी, ठीक है। तो समझना ये बहुत जरूरी है कि डेटा प्रोसेसर कोई और भी हो सकता है, फिड्यूशरी कोई और भी हो सकता है। आप डेटा प्रोसेसर को फिड्यूशरी के अंडर में मान सकते हैं, बट डेटा प्रोसेसर को आप फिड्यूशरी नहीं बोल सकते। फिड्यूशरी अलग होगा और डेटा प्रोसेसर अलग होगा, राइट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेटा? इस डेटा को अगर आप, जो फिड्यूशरी है वो कलेक्ट करती है, तो उसका यूज कहाँ पे होता है? फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, इज द टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो जो यूज है वो क्या है? टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, जो कि आज की डेट में हर कंपनी करती है। इफ यू टॉक अबाउट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, you must have seen on Facebook also कि अगर आप कोई Google पे सर्च कर रहे हैं, let's say you're searching hotels in some city on your Google platform, on your browser, the same kind of suggestion you will see on Facebook also, that similarly बीच में advertisement Facebook पे भी आने लगेगा आपके कि such hotels are there at such prices available in that city। तो ये हो क्या रहा है कि इफ योर फोन इज लिंक्ड विद फेसबुक, अगर आपका फोन लिंक्ड है फोन से, फेसबुक से और गूगल से भी सिंक्ड है, तो वो जनरली सारा का सारा डेटा इधर से उधर कलेक्ट करके, एनालाइज करके आपको एडवर्टाइज कर रहे हैं, राइट। तो जैसे एप्स हो गए, ओयो हो गया, ओयो या मेक माई ट्रिप, वो डेटा कलेक्ट करता है गूगल से, और उसके बाद आपको एडवर्टाइज करता है ऑन फेसबुक। आपकी मार्केटिंग जो करता है अपने होटल्स की, वो फेसबुक या गूगल के माध्यम से करता है।
तो ये क्या हुई, ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हुई, यानी वो सिर्फ आप ही को बता रहा है क्योंकि आपको होटल्स की जरूरत है, वो किसी और को XYZ को नहीं बता रहा है कि उसको होटल की जरूरत है, तो नहीं भी है तो भी उसको बता रहा है कि भाई इस रेट पे होटल है, नहीं, क्योंकि आपने गूगल पे सर्च किया था होटल्स के बारे में, तो टारगेट आप ही हैं इस टाइम पे ओयो के, और वो आप ही को बताएगा थ्रू फेसबुक और गूगल, गूगल एड्स भी आते हैं, फेसबुक पे एड्स भी आते हैं, उसके थ्रू वो आपको बताएगा। तो ये पता कहां से चल रहा है उसको, बाय एनालाइजिंग योर डेटा विच इज रिकवर्ड फ्रॉम दी गूगल और एनी अदर क्लाउड per se or any other browser per se, right? So targeted advertising is the first use. Then जो इकोनॉमी है आपकी, if you see the marketing agencies, if you see the marketing economy, what they do is they collect your data, and sometimes some of the agencies they work on this only. तो बहुत सारे जो corporates है, they raise fund also by selling this data. Corporates raising fund by selling data. Now this data can be sold out. It is, there are various cases. आज की डेट में अगर आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो साइबर क्राइम्स में बहुत सारे केसेस नजर आ रहे हैं जहां पर वेरियस कॉल सेंटर्स लाइक दैट ऑफ Domino's, Pizza Hut, इन लोगों के पास they have data of millions. Like you went to McDonald's to eat pizza, oh sorry, burger, or you went any shop like Decathlon. So they when you go for billing, they always ask your number and your name, your email ID. तीन चीजें वो आपसे मांगेगा और उसके बाद आपसे आपका रिव्यू भी मांगेगा. तो अगर आप उसको अपना नंबर और नाम बताते हैं तो what they do is they store it. आपका नाम और नंबर आपको स्टोर करेगा. उसके बाद they will give you invoice. अभी उस इनवॉइस में क्या है, इफ यू चेक द इनवॉइस, पहली चीज तो उसमें जो ट्रेडर है उसका नाम लिखा होगा, ट्रेडर XYZ जो भी ट्रेड कर रहा है, पैंटलून्स और वटेवर, डोमिनोज, राइट. और उसके बाद नीचे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपने खरीदे हैं वो लिखे होंगे, एंड द कॉस्ट विल बी रिटन ओवर हेयर. उसके बाद यहाँ पर आपका नाम होगा, योर नेम एंड योर नंबर विल बी रिटन. नाउ इससे पता क्या चला, सिर्फ ये नहीं पता चला, यही नहीं बात हुई कि आपको क्या चीज आपने, आपका नाम क्या और नंबर क्या है, सिर्फ ये डिटेल नहीं मिली. इसके अलावा they will get this detail also that what things you like. If you bought 6 t-shirts, right, अगर आपको 6 टी-शर्ट्स आपने खरीदे और आपने शॉर्ट्स खरीदे हैं, तो वो ये देखेंगे कि पूरे दिन में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये टी-शर्ट्स खरीद रहे हैं, या इस ब्रांड के टी-शर्ट्स खरीद रहे हैं, या इस ब्रांड के शॉर्ट्स खरीद रहे हैं, या फिर ये वाला बर्गर पसंद कर रहे हैं, ठीक है, या ये वाला पिज्जा खा रहे हैं. तो with along with your name and number, they are getting your preferences also. जब आपकी preferences along with your name and number पता चलती है, तो this particular data becomes very important and very crucial for all those companies who want to sell their goods and service in the market. ठीक है, तो उन सभी कंपनीज के लिए आपका जो ये डेटा है, जो आपके प्रेफरेंसेस और चॉइसेस हैं, हाउ यू बाय, वेयर यू बाय एंड व्हाट टाइम यू बाय इवन, तो वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेट्स से दिस पर्टिकुलर कंपनी हु इज बिलिंग योर दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाटएवर यू बॉट, तो उसको अगर वो बिल कर रहा है तो उसके पास ऐसे हजारों डेटा होंगे दिन में, और वो सारा डेटा उठा के शेयर भी कर सकता है किसी और के साथ. दिस इज हैपनिंग इन these days that all these companies which wants to raise fund, they are trying to sell these data at the cost of some prices, and that is how they are raising money also, राइट. तो ये तरीके हैं आपके प्रेफरेंस जानने के बाद, आपके डेटा को लेने के बाद उसको सेल आउट करने के. और मुझे अगर 1 लाख लोगों का डेटा सेल करना है तो आई कैन आस्क एनी कंपनी फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी कि मेरे पास 1 लाख लोगों का डेटा है जिसमें उनका नाम है, उनका नंबर है, उनके प्रेफरेंसेस भी हैं. सो इफ यू वांट टू बाय दिस, सो एनी XYZ कंपनी कैन कम टू मी टू बाय दिस ऑल डेटा ऑफ 1 लाख पीपल, राइट. सो दैट इज हाउ दे कैन रेज फंड्स ऑल्सो. ये तो बात हुई कि यूज क्या है डेटा का, और ये यूज शायद आपको भी मालूम होगा. अब इसमें बात कहाँ पे आती है, वंस यू जस्ट यू हैड दिस इनवॉइस, आपने इनवॉइस लिया, आपने बिल लिया, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका नाम भी जा चुका है, उसके बाद आपका नंबर भी जा चुका है. इन स्पाइट ऑफ दैट, यू नो, इन एडिशन टू दैट, आपकी जो प्रेफरेंसेस आपने जो चूज किए हैं यहाँ पर, आपने जो खरीदा है, वो भी उस कंपनी को मालूम पड़ चुका है. तो इट्स समवेयर एन अटैक ऑन योर प्राइवेसी, राइट. सो the next day you will get SMS के आपके पास आज ये ऑफर है, आज आपको ये कोड यूज करना है, आप यहाँ पर खाना खाने आ सकते हैं, सच ऑफर्स आर देयर. तो ये क्या हो रहा है, दिस इज द यू नो क्लियर कट वायलेशन ऑफ योर प्राइवेसी. ठीक है, तो ये इन्वेजन होता है प्राइवेसी का. दिस पर्टिकुलर डेटा इज ऑल्सो यू नो पार्ट ऑफ योर प्राइवेसी. तो
ये बात हुई। दूसरी चीज, एक चीज आपको बहुत बार देखने मिलेगी, दैट इज डेटा फ्लो। डेटा फ्लो कई जगह लिखा होता है, डेटा फ्लो क्या होता है? सो डेटा फ्लो इज द डेटा एट्रीब्यूट्स। डेटा फ्लो में डेटा एट्रीब्यूट्स आते हैं, लाइक वेयर इट इज सेंट, कहां डेटा भेजा गया, वेयर द डेटा इज सेंट, वेयर इट इज स्टोर्ड, वेयर इट इज प्रोसेस्ड। ये सारा डेटा फ्लो का पार्ट है। डेटा कहां से कलेक्ट हुआ, कहां पे स्टोर हुआ, कहां पे प्रोसेस हुआ, ठीक है, किसके पास डेटा है, हु ओन्स इट, ठीक है, हु टैक्स इट, ठीक है, हु कैन एक्सेस एंड हु अर्न्स प्रॉफिट, हु प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डेटा फ्लो। तो सारे डेटा एट्रीब्यूट्स को अगर आप देखोगे तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? डेटा फ्लो कहलाता है। यानी कहां से डेटा निकला, कहां कलेक्ट हुआ, कहां गया, किसने एक्सेस किया, किसके पास उसका यूज एक्सेस है, किसके पास उसका ओनरशिप है, कौन उससे प्रॉफिट कमाता है और उसके ऊपर कौन टैक्स लगाता है, ये सारा पार्ट ऑफ data flow hai. Now, next thing I'll come to important definitions in this particular thing. Okay, so some important definitions you will find in the data protection bill. These are, I'll make you understand one by one. सबसे important concept यही है जो definitions मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर वो पूछ सकता है तो ये शायद definitions पूछ सकता है। सबसे पहली definition आती है data principle की, ठीक है ना। व्हाट इज डेटा प्रिंसिपल? डेटा प्रिंसिपल को आप डेटा सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। डेटा सब्जेक्ट, डेटा सब्जेक्ट का मतलब होता है कि डेटा किसका लिया गया, कौन है वो व्यक्ति जिसका डेटा लिया गया, कलेक्ट किया गया, प्रोसेस किया गया, ठीक है। तो द पर्सन हुज डेटा इज प्रोसेस्ड, पर्सन हुज डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस। तो वो जो एंटिटी है जिसका डेटा लिया गया है उसको डेटा प्रिंसिपल या डेटा सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डेटा फिड्यूशरी की, तो उसको आप याद रखिएगा। डेटा फिड्यूशरीज, राइट। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे ऑल आर डेटा फिड्यूशरीज। All the service providers who collect data, store data, use data to provide goods and services, ठीक है। तो जो भी goods and services provide करते हैं उन सबको आप डेटा फिड्यूशरीज बोलेंगे। अब इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द डेटा प्रोसेसर। तो डेटा प्रोसेसर डेटा फिड्यूशरी से अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ डेटा लोकलाइजेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। So this definition is very important and this concept is very important. You have to understand this concept. I'll start with an example. मैं इसको example से explain कैसे करूंगा। In 2018 अक्टूबर, राइट, अक्टूबर 2018 में आरबीआई ने एक गाइडलाइंस पहले, इस अक्टूबर से पहले गाइडलाइंस दी थी कि जितनी भी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं हु आर गेटिंग पेमेंट्स फ्रॉम पब्लिक, जो सिटीजन से पेमेंट्स ले रही हैं ऑन देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो सारी जो कंपनीज हैं वो सारे अपने जो पेमेंट के डेटाज हैं, राइट, जितने भी कंपनीज लाइक फेसबुक इज देयर, Amazon इज देयर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स लेती हैं लोगों से एंड दे गिव गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अलीबाबा है, फेसबुक है, ठीक है, वीजा है, एमिक्स है। तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स लेती हैं और उसके बाद उसको उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। अब ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स का जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है, सारा ट्रांजैक्शन डेटा जो होता है इसका, तो इस ट्रांजैक्शन डेटा को आरबीआई ने बोला कि इंडिया में ही स्टोर करना है। सो आरबीआई रूल्ड that all this data, that this data should be stored in India,
stored in India. Now, इसका क्या मतलब है? Should be stored in India. If you know that these all companies who store data, these all companies have servers to store that data. Servers are warehouses. ये godowns हैं जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, जहाँ पे हार्ड ड्राइव्स लगे होते हैं. आपने देखे होंगे बड़े बड़े रूम्स होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पर एक सर्वर रूम होता है. सर्वर रूम में ऐसे कॉलम्स लगे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स लगे होते हैं. सो दीज सर्वर्स आर एक्चुअली देयर टू स्टोर द डेटा विद द हेल्प ऑफ हार्ड ड्राइव्स. तो सारी कंपनीज के अपने अपने सर्वर्स हैं जो कि अलग अलग देशों में लोकेटेड हैं. फेसबुक के बहुत सारे सर्वर्स हैं जो यूएस में भी हैं, चाइना में भी है. वीजा के सर्वर्स हैं, अलीबाबा के सर्वर्स चाइना में भी है, थाईलैंड में भी है. तो इन सभी कंपनीज के सर्वर्स होते हैं जहां पर ये आपके डेटा को स्टोर करती हैं. राइट. आरबीआई ने बोला था जितना भी ये ट्रांजैक्शन डेटा है इंडिया का, जितना भी लोगों ने पेमेंट किया है, पेमेंट जिनके कार्ड के डिटेल्स हैं, उनके सीवीवी नंबर्स हैं, वो सारे जो उनके प्राइवेट डेटाज हैं, जो उनके फाइनेंशियल डेटाज हैं, वो सारे इंडियन सर्वर्स में आप लोग स्टोर करेंगे. आप किसी विदेशी किसी दूसरे देश के सर्वर्स में आप उसको स्टोर नहीं करेंगे. तो दिस वाज रूल्ड बाय आरबीआई. नाउ अक्टूबर 2018 में आरबीआई ने इस डेटा लोकलाइजेशन या डेटा के लोकल एरिया में स्टोर करने जाने की जो समय सीमा थी वो नहीं बढ़ाई. ऑल द कंपनीज रिक्वेस्टेड आरबीआई कि आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए टाइम लिमिट को, तो हम लोग डेटा स्टोर कर पाएंगे. तो आरबीआई ने उसको मना कर दिया कि नहीं, अक्टूबर 2018 इज द लास्ट डेट, यू हैव टू लोकलाइज दैट डेटा इन इंडिया ओनली. तो ट्रांजैक्शन डेटा को स्टोर करना इंडिया में बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स अ crucial financial detail which cannot be shared or which cannot be bypassed to some other country. और उसका हमको पता नहीं कि वहां पे डेटा लॉस किस तरह से है. ठीक है. सो 80% ऑफ द कंपनीज इस 80% ऑफ द कंपनीज, राइट, सो दे ओबेड दिस एंड दे कंप्लाइड विद दिस ऑर्डर ऑफ आरबीआई, जिसमें कि फेसबुक है, अमेजोन है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कंप्लाई किया था आरबीआई के ऑर्डर्स के साथ और उन्होंने लोकलाइज कर दिया था डेटा को. तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जो क्रूशियल डेटा है उसको आपको जो स्टोरेज होगा वो उसी कंट्री में बनाना पड़ेगा, आप उसको कहीं बाहर नहीं बना सकते हैं. सो ये इस एग्जांपल समझ में आ रहा है. तो आई होप द डेटा लोकलाइजेशन इज क्लियर. तो अब ये क्रूशियल डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, उसको आगे चल के देखते हैं कि वो कौन सा डेटा होता है.
ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है पर्सनल डेटा एंड इन इंडिया। अब इसमें बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर नॉर्म को क्रिटिसाइज कर रही हैं। व्हाई फॉरेन कंपनीज आर क्रिटिसाइजिंग दिस नॉर्म? फॉरेन कंपनीज आर क्रिटिसाइजिंग, व्हाई फॉरेन कंपनीज आर क्रिटिसाइजिंग? बिकॉज इंडिया में हर छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी का यहाँ पर सर्वर क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो एवरी कंपनी कैन नॉट क्रिएट सर्वर इन इंडिया। अगर आपको इंडिया में डेटा रखना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको सर्वर बनाना पड़ेगा और हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओनली द बिग जायंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैन डू दैट, नॉट ऑल द कंपनीज कैन डू दैट। सम ऑफ द टेक कंपनीज आर क्रिटिसाइजिंग दिस नॉर्म कि आपको कॉपी इंडिया में रखनी है। और जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आता है वो है पर्सनल डेटा। तो इस पर्टिकुलर बिल में डेटा को 3 तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है, राइट? तो डेटा की जो 3 कैटेगरीज इस बिल में बनाई गई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी इज पर्सनल डेटा, ठीक है, पीडी। सेकेंड वन इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ठीक है। थर्ड वन इज क्रिटिकल पर्सनल डेटा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, लाइक डेटा लोकलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि पर्सनल डेटा की बार बार बात हो रही है श्री कृष्णा कमेटी द्वारा। और दूसरी चीज, कुछ डेटा को वो बोल रहे हैं कि इंडिया में लोकलाइज करो, आरबीआई बोल रहा है कि इंडिया में आप स्टोरेज करो ट्रांजेक्शन डेटा को, वो बोल रहे हैं कि आप पर्सनल डेटा को बाहर प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी कॉपी यहाँ पे बनानी जरूरी है। तो इस पूरी कमेटी को लगा कि नहीं, इसको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, कौन से डेटा को आप बाहर ले जा सकते हैं, कौन से डेटा को आप बाहर नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने 3 में डिवाइड किया। पहला है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा वो डेटा होता है जिसको विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, which is used to identify a person, right? ठीक है, तो एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी डेटा जरूरी होता है वो कौन कौन सा है? उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसका इवन द बायोमेट्रिक, उसका आधार नंबर, जो भी ये सारे नंबर्स, उसका आधार, ठीक है, और उसके फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं, दैट पार्ट ऑफ बायोमेट्रिक ओनली। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी डेटा चाहिए होगा, किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है? स्पोकन डेटा भी हो सकता है, रिटन पेपर भी हो सकता है, ठीक है, डिजिटल भी हो सकता है, राइट, एंड बायोमेट्री में भी जा सकता है, राइट। सो व्हाट इज बायोमेट्री? बायोमेट्री इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है। जब आप स्टैटिस्टिक का एनालिसिस करते हैं किसी बायोलॉजिकल डेटा का तो उसको बायोमेट्री बोलते हैं। तो ये कैसे भी हो सकता है, डिजिटल रिटन पेपर पे भी हो सकता है या फिर स्पोकन भी हो सकता है डेटा, पर्सनल डेटा। नेक्स्ट थिंग इज सेंसिटिव डेटा। व्हाट इज सेंसिटिव डेटा? फाइनेंशियल डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट इज योर हेल्थ related data. Third one is your sexual orientation. Next is your, what are your beliefs? Beliefs में आपके caste beliefs आते हैं, religious beliefs आते हैं, whether you're orthodox, modern आपके beliefs हैं, all those beliefs, and your political opinion, ठीक है, all this comes in the sensitive personal data. अभी sensitive personal data को भी ना 2 में कैटेगराइज कर दिया गया, एडल्ट सेंसिटिव एंड चाइल्ड सेंसिटिव, ठीक है। सो ये आपको नहीं मिलेगा कहीं देखने को, बट दिस came on the discussion in Rajya Sabha TV, so I took it from there only.
So what is adult sensitive data and what is child sensitive data? If these days you can see that mobile phones, smartphones are used by small kids. So a kid of 12 years is using a smartphone. He is uploading his stories on TikTok and he is uploading his stories on WhatsApp. All sorts of things are there. तो ये ऐसा माना जाता है कि if you ask for a consent from a child, maybe he is not able to provide you that consent. He's not that mature to be able to understand what is a consent and how to give a consent and to whom to give a consent. So ऐसा possible कई बार नहीं होता है कि if somebody is asking for the consent of data sharing, let's say some app is asking to get access to your gallery, to your photo gallery. Maybe a child is not mature enough to just think of it, whether to give the access or not to give the access, whether to share the information with that app, with that company or not. So there are different connotations for this sensitive personal data for adults and the children. So in this case, whenever your consent will be taken for the sharing or the access or the collection of personal data, of that sensitive personal data, so a child will be seen as a different category and the adult will be seen as a different category under the norms. And the law again says that for child's consent and the data which is child sensitive, these days you can see the child pornography is increasing and government has banned that child pornography explicitly in India. तो चाइल्ड कंसेंट कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, whether the child is mature enough to do that, तो उसके लिए अलग प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं. तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा को हमने दो जगह कैटेगराइज किया है, एडल्ट पर्सनल डेटा एंड चाइल्ड सेंसिटिव. द मेच्योरिटी केस इज हेयर टू बी स्टडीड. और यहाँ पे ये डिबेटेबल है कि चाइल्ड इज मेच्योर इनफ फॉर द कंसेंट. ठीक है, तो ये केस भी थोड़ा सा डीप डाउन पढ़ने वाला है कि इसमें क्या हो सकता है. लास्टली वी हैव क्रिटिकल पर्सनल डेटा. क्रिटिकल पर्सनल डेटा बेसिकली गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल प्रोवाइड the categories for it. So government from time to time classify the critical personal data. अभी इसमें जो भी पब्लिक सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ नेशन, नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री, ये सब के जो जो डेटाज होंगे वो क्रिटिकल पर्सनल डेटाज में डाले जाएंगे. सो डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी. ठीक है, तो ये सारे क्रिटिकल पर्सनल डेटाज में आएंगे और जो कि स्टोर्ड और प्रोसेस्ड इंडिया में रहेंगे. स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन इंडिया. So there are three categories: personal data, sensitive personal data and critical personal data. मैंने तीनों आपको बताए. और क्रिटिकल पर्सनल डेटा के बारे में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्लासिफाई करती रहेगी, डेफिनेशंस देती रहेगी और डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट्स करती रहेगी. ठीक है, सो ये क्रिटिकल पर्सनल डेटा हुआ. स्टोरेज और प्रोसेसिंग, इसका जो प्रोसेसिंग होगी वो इंडिया के अंदर होगी. इसका बाहर स्टोरेज, एप्लीकेशन, कलेक्शन बाहर नहीं हो सकता है, ये इंडिया में ही रहेगा. ठीक है, तो ये बात हुई पर्सनल जो डेटा है उसके तीन कैटेगरीज की. फिर एक स्पेशल कैटेगरी आती है विच इज नॉन पर्सनल डेटा. राइट, तो जो मैंने शुरुआत में शायद डिस्कस किया भी था, नॉन पर्सनल डेटा, या जिसको मैंने नाम दिया था अनोनिमस डेटा. राइट, सो अनोनिमस डेटा. अभी अनोनिमस डेटा मैंने जैसा बताया आपको पहले शुरुआत में कि ट्रैफिक इंफॉर्मेशन या फिर हम बोले कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लागू नहीं होती है, उससे नहीं आ रही है, किसी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है उससे, एक मासेस का डेटा है अगर वो, तो उसको आप अनोनिमस पर्सनल डेटा बोल सकते हैं. तो इसके लिए इस बिल में प्रावधान है, प्रोविजन है कि अगर ऐसा अनोनिमस डेटा इज कलेक्टेड बाय अ प्राइवेट एजेंसी और अ प्राइवेट कंपनी एंड इफ गवर्नमेंट agency needs that data, the private company has to share that data with the government agency. So a fiduciary has to provide this data to government if asked for. Right,
तो ये जो नॉन पर्सनल डेटा है, ये ज्यादातर प्राइवेट एजेंसीज के पास होता है और वो कलेक्ट करते रहते हैं और उनके पास एक अच्छा खासा स्टॉक होता है इसका। तो एक गवर्नमेंट वांट्स दिस डेटा, अगर उसको चाहिए तो उसको देना पड़ेगा प्राइवेट एजेंसीज में। ये एक नया क्लॉज जोड़ा गया है इस बिल में जो कि पहले नहीं था। ठीक है। उसके बाद आती है बात के जो फिड्यूशरीज हैं, इस बिल में एक और फीचर है कि जितनी भी फिड्यूशरीज हैं, नाउ दे हैव टू गो फॉर दी यूजर वेरिफिकेशन। तो एक नया कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया यूजर वेरिफिकेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते होंगे तो फेसबुक पे आपको बहुत सारे फेक अकाउंट्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे फेक आईडीज मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बहुत तरह के काम कर रहे हैं, बहुत गलत गलत भी काम कर रहे हैं। तो यूजर वेरिफिकेशन का जो बर्डन डाला गया है, दैट इज ऑन दी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बर्डन है कि वो यूजर वेरिफिकेशन करेंगे और दैट विल बी बेस्ड ऑन दी वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ डेटा। वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी, कितनी वॉल्यूम में डेटा उनके पास आ रहा है। अगर कोई छोटा मोटा ऐप है कि उसके पास बहुत कम ही लोग हैं अभी उसके उसके ऐप में या उसके एप्लीकेशन के ऊपर बहुत कम यूजर्स हैं, तो फिर उस केस में वो ना भी करे वेरिफिकेशन तो काम चल जाएगा। बट एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर यूजर वेरिफिकेशन का बर्डन डाला गया है। और अगर ये एक्ट बनता है तो इसके बाद शायद फेसबुक या ट्विटर या फिर आपका इंस्टाग्राम, ये सारे जितने भी एप्स हैं, ये सब आपसे कुछ ना कुछ आइडेंटिटी आपसे मांगेंगे, आपसे प्रूफ मांगेंगे। और उसके बाद जितने भी फेक अकाउंट्स होंगे उनको ये लोग डिलीट कर देंगे या फिर क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेट कर देंगे। राइट। सो दिस विल इंक्रीज द डिक्रीज द एनोनिमिटी, डिक्रीज अनोनिमिटी। मैं बस पॉइंटर्स में लिख दे रहा हूं, आप इसको फेयर आउट कर सकते हैं बाद में नोट्स के फॉर्म में। नाउ सम अदर फीचर्स। ओके। कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे कि अब ये ऐसा नहीं है कि ये नॉन यूजफुल फीचर्स हैं, ज्यादा यूजफुल फीचर्स है बल्कि। तो मेन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दूसरी चीज आती है एग्जेम्पशन। तो जो अदर फीचर्स में जो पहला फीचर है दैट इज एग्जेम्पशन। अब हर लॉ में कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, इस लॉ में भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। जैसे कि जो प्राइवेसी का केस है, जो डेटा प्राइवेसी है, पर्सनल डेटा हो या सेंसिटिव डेटा हो, तो उस केस में प्राइवेसी के लिए कुछ एग्जेम्पशंस रखे गए हैं। जो एग्जेम्पशंस हमारे राइट टू फ्रीडम में है, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 के जो भी जो पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी, जो भी ये सारे फीचर्स के अंडर एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट को कि वो किसी का भी डेटा एक्सेस कर सकती है, उसको प्रोसेस कर सकती है, उसको कलेक्ट कर सकती है, उसको स्टोर कर सकती है फॉर ऑल दीज पर्पसेस। इन दैट केस प्राइवेसी लॉज वायलेशन नहीं माना जाएगा उसको और वो गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये एग्जेम्पशंस हैं। सेम एग्जेम्पशंस यू विल फाइंड इन सेम एग्जेम्पशंस एज ऑफ आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है। वही सारे एग्जेम्पशंस आपको यहाँ भी है, पब्लिक सेफ्टी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री और लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये सारी चीजें। तो एग्जाम्पशन यहाँ पर भी है, उसको राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा जो फीचर है वो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया गया है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर यानी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बिल बोल रहा है अबाउट द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कि बनाई जाएगी। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी विल वर्क, ये क्या काम करेगी? will this will oversee the assessment of data, will audit, will make the definitions, new definitions of data। जो भी इस पूरे लॉ में नई नई डेफिनेशंस आएंगी, जिनको जो एवोल्यूशन के थ्रू आएंगी, धीरे धीरे से आगे बढ़ेगी सोसाइटी या ये लॉ आगे आगे बढ़ेगा तो नए नए क्राइम्स आएंगे, तो उस हिसाब से डेफिनेशंस भी बनाई जाएंगी। तो जो भी इसका असेसमेंट होगा, इस डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो काम करेगी वो असेसमेंट का काम करेगी। will assessment this law, will go for the न्यू डेफिनेशंस। किसी चीज को डिफाइन करना है, वो डिफाइंड नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि
नेशनल सिक्योरिटी, जैसे आर्टिकल 19 में अगर बात की जाए तो पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी थोड़े से वेग टर्म्स हैं और ये कुछ ज्यादा क्लासिफाइड मैनर में नहीं दिए हुए हैं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो इनके अंदर भी कोई डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएगी। विल ऑडिट डेटाज, कंपनीज की डेटा जो वो स्टोर कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, इंडिया में कर रही हैं, बाहर कर रही हैं, कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, उसको भी ऑडिट करेगी। ठीक है, ये सारा काम होगा दी रेगुलेटर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, डीपीओ। तो हर कंपनी में ईच कंपनी विल हैव अ डीपीओ। ठीक है, इसका काम क्या होगा, हर कंपनी में एक डीपीओ अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी को, जो कि ये डेटा प्रोटेक्शन का काम करेगा। ही विल लाइजन विद डीपीए, वो डीपीए के साथ लाइजन करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कंपनीज वो सारे डेटा प्रोटेक्शन के लॉज को एग्जीक्यूट कर रही है, उनको फॉलो कर रही है, राइट। तो हर कंपनी में एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा। ठीक है, डीपीओ। फोर्थ वन, नेक्स्ट वन इज द डेटा पोर्टेबिलिटी, or more specifically I'll say right to data portability, right to data portability, right। so right to data portability, अब ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है डेटा पोर्टेबिलिटी। ये क्या बोलता है, ओके आई विल एक्सप्लेन यू है। डेटा पोर्टेबिलिटी क्या होती है, इफ यू आर यूजिंग फेसबुक, लेट्स से आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और फेसबुक में आपने फोटोज अपलोड करना शुरू किए, एंड नाउ योर फोटोज आर गेटिंग sorted, organized in different folders। let's say आपके जो फोटोज हैं वो according to occasions organize हो रहे हैं। let's say your birthday was there in 2018, in 2018 your birthday was there और उस बर्थडे में आपने कुछ फोटोज क्लिक किए, तो फेसबुक एक फोल्डर बना देता है जिसमें आपके उस सारे बर्थडे के फोटोग्राफ्स होंगे। तो वो एक फोल्डर बना दिया और ऐसे ही फोल्डर्स हर साल बनते चले जाएंगे आपके हर बर्थडे के लिए। तो ये क्या हुआ, आपने फोटोज भी अपलोड किए और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको रखा गया फेसबुक द्वारा उस क्लाउड में। बट अगर आपको चाहिए कि अब ये सारी चीजें, राइट, यू वांट टू जस्ट शिफ्ट ऑल दीज थिंग्स टू इंस्टाग्राम एंड यू वांट टू जस्ट डीएक्टिवेट योर फेसबुक अकाउंट, आपने फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करना है और ये सारी चीजें जो है वो आपको इंस्टा पे ट्रांसफर करनी है, अपने वीडियोस, अपने फोटोज, बट यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोज, राइट। तो जो आपके फोल्डर्स में फोटोज जिस तरह से लगे हुए हैं, आपके जिस तरह से वहां पर लोग जो आपके दोस्त हैं वो टैग्ड हैं, कौन कौन उसमें है, उन सबके नाम भी लिखे हुए, वो सारी चीजें आप चाहते हो एज इट इज इंस्टाग्राम पे चली जाए। यानी योर data should be that portable and flexible enough, should be shared as it is in that organized form to some other platform in some other environment। ठीक है, तो वो कह जाता है data portability। if this is possible then full data portability is there and if it is not possible then data portability is not there। सेम केस हो सकता है कि अगर आपको फेसबुक से फोटोग्राफ्स फेसबुक डीएक्टिवेट करना है और अपने लैपटॉप में डाल रहे हैं वो सारे फोटोग्राफ्स, ठीक है, तो आप उस डेटा को वहां से उठाइए ऐसे ही बिल्कुल बल्क में और अपने लैपटॉप में डाल दीजिए विदाउट इवन डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट ऑफ दोस फोटोग्राफ्स इन योर लैपटॉप। तो अगर ऐसा हो सकता है देन दिस डेटा इज पोर्टेबल and user has a right of this data portability because as user enters all his data in the profile और जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो डेटा एंटर करता है तो कहीं ना कहीं ये उसका राइट बन जाता है क्योंकि ये उसका डेटा है, उसका कॉपीराइटेड डेटा है, उसका अपना प्राइवेसी है उसकी, तो वो चाहे तो उसको उसी तरह से उठाकर किसी और एनवायरनमेंट में भी डाल सकता है। दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी प्रोवाइडेड, दिस प्रोविजन हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल दीज डेटा हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और ये राइट है। तो ये जो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी है, राइट, तो दिस राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी इज explicitly mentioned in the data protection law। So to access and transfer data because all of them are clouds, ये सब clouds हैं, ठीक है। तो जैसे YouTube, आप YouTube पे वीडियोस होते हैं, वो आप अगर आपने YouTube पे वीडियो डाली तो उस वीडियो को आप Instagram पे शेयर नहीं कर सकते। इफ यू नो अबाउट Instagram, अगर आप Instagram पे हैं
तो यूट्यूब की वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकते, आपको यूट्यूब से वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टाग्राम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियोस आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, वहां पर अपलोड कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पर पोर्टेबिलिटी नहीं है डेटा की, राइट? सो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी इज देयर इन द बिल। नेक्स्ट थिंग इज पर्पस लिमिटेशन एंड कलेक्शन लिमिटेशन। ये अगला फीचर है, कलेक्शन लिमिटेशन। पर्पस लिमिटेशन क्या है और कलेक्शन लिमिटेशन क्या है? एक एक निर्धारित लाइन होगी, एक बाउंड्री होगी लॉज में कि कहां तक आप जो डेटा है उसको लॉफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? यानी ऐसा नहीं है कि आप बस डेटा मांगे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी कि बस डेटा लिए जा रही है। देयर विल बी अ लाइन कि यहां तक आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसमें लिमिटेशन होगी। पर्पस आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि दैट व्हाई यू आर कलेक्टिंग डेटा। इवन द फिड्यूशरीज, उनके ऊपर भी ये लायबिलिटी होगी कि वो क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डेटा। तो फिड्यूशरी को बताना पड़ेगा सरकार को कि वो ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रही है, शुड नेम द पर्पस, एंड उस पर्पस के बावजूद भी एक कलेक्शन की लिमिटेशन होगी, दैट सो फार यू कैन गो फॉर द डेटा कलेक्शन एंड बियॉन्ड दैट लिमिट you cannot collect the data, right? So this is purpose limitation and कलेक्शन लिमिटेशन। इसके एम्बिट में गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ठीक है? तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। पर्पस लिमिटेशन एंड कलेक्शन लिमिटेशन, आपको पर्पस बताना पड़ेगा और कलेक्शन के लिए एक सेट बाउंड्री होगी जहां तक आप उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फीचर इज राइट टू फॉरगेटन। राइट टू फॉरगॉटन, राइट टू फॉरगॉटन, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपना अकाउंट कहीं भी सोशल नेटवर्किंग से मान लीजिए आप बंद करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, तो आपको पूरा राइट है कि आपका जो भी डेटा उस साइट पे या उस नेटवर्क पे अवेलेबल है, उसके सर्वर पे अवेलेबल है, वो आप वहां से डिलीट करा सके। इवन इफ अगर आप डीएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं अपना अकाउंट या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका अपने डेटा के ऊपर पूरा राइट बनता है। आप चाहे तो उसको तुरंत डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड में होता है, इफ यू गो टू द गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप आज डिलीट भी कर देते हैं तो 6 महीने तक वो सर्वर में रहता है, आप उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं। फोटोग्राफ है, कोई सॉन्ग है, कोई 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 भी पर्टिकुलर फाइल है, अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो 6 महीने तक वो वहां पे रहता है, एंड दैट इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन रिकवर इट, ठीक है? तो ये जो राइट टू फॉरगॉटन है, ये तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। यानी अगर मैं चाहूं तो मैं अपने सर्वर्स से अपना डेटा खींच सकता हूं, जो भी वो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है या गूगल है, जितना भी प्लेटफॉर्म से अगर मैं चाहूं तो अपने डेटा को वहां से तुरंत डिलीट कर सकता हूं। दैट राइट शुड बी विद मी एंड दिस इज कॉल्ड राइट टू फॉरगॉटन, राइट? And this is taken from the this right has been taken from the GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर। ये ईयू के लॉज में है, इट्स पार्ट ऑफ द ईयू लॉज, जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट। वहां पर एक्सप्लिसिटली डेटा प्रोटेक्शन के अंडर में राइट टू फॉरगॉटन को प्रोविजन डाला गया है, ठीक है? एंड लास्टली पेनल्टीज, डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो पेनल्टीज रखी गई है, अगर माइनर वायलेशन होता है, फॉर माइनर वायलेशन पेनल्टी इज 5 करोड़ रुपीज। अगर कोई भी फिड्यूशरी वायलेट करता है, फिड्यूशरी की बात हो रही है, 5 करोड़ और 2% ऑफ द टर्नओवर, उसका टर्नओवर का 2% या 5 करोड़ रुपए, विच एवर इज हायर, ठीक है? एंड मेजर वायलेशन में दिस प्राइस गोज अप टू 10 करोड़ और 4% ऑफ टर्नओवर, ठीक है? विच एवर इज हायर, ठीक है? और इसमें अगर इसमें एक सजा भी है, 3 years of jail term, 3 years of jail to the executive of that company, executive head of company, ठीक है? तो
ये पेनल्टीज की बात होगी। नाउ नेक्स्ट मैं फीचर्स देख लिए, अब बात करते हैं जो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। तो पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल इज द डेटा लोकलाइजेशन इज दैट एडवांटेज कि जितना भी डेटा इंडिया में स्टोर रहेगा, इट विल बेनिफिट द लॉ मेक लॉ सॉरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। ठीक है, इट विल बेनिफिट द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज टू एक्सेस डेटा फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्चुअली डेटा लोकलाइजेशन। अगर डेटा इंडिया में स्टोर्ड है, लाइक दैट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स डेटा और पेमेंट्स डेटा, जो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स के डेटास होते हैं, अगर वो इंडिया में स्टोर्ड हैं, तो जितनी भी हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, लाइक सीबीआई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, ईओडब्ल्यूज हैं, राइट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स जो होती हैं, उसके बाद और भी है एनआईए वगैरह, जो जिनको इस डेटा की जरूरत पड़ती है, अगर ये डेटा इंडिया में लोकलाइज रहेगा, यहाँ पे स्टोर रहेगा, तो बहुत आसानी से ये एजेंसीज उसको रिकवर कर सकती हैं और उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। तो ये किसका बेनिफिट होगा? दूसरा बेनिफिट, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर। राइट, तो क्रॉस बॉर्डर डेटा जो होता है वो म्यूचुअल ट्रीटीज के अंडर में गवर्न होता है। तो दिस इज अगेन दी बेनिफिट ऑफ डेटा लोकलाइजेशन। तो म्यूचुअल ट्रीटीज के अंडर में गवर्न होता है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर डेटा जब भी होता है, तो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें आपको डेटा की जरूरत है, तो म्यूचुअल ट्रीटीज अगर नहीं भी हैं और अगर डेटा लोकलाइज्ड है, इफ डेटा इज लोकलाइज्ड, तो उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देन इजीली एक्सेसिबल। तो फॉरेन डेटा जो होते हैं, जो बाहर के डेटाज हैं, जो इंडिया में आकर मान लीजिए कुछ ट्रांसफर हुआ है या कुछ ऐसी डेटा रिकवर होना है जो यहाँ पर स्टोर्ड है पर किसी और देश का डेटा है जो इंडिया में स्टोर्ड है, तो उसको आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट एडवांटेज इज सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन। तो ये तीनों जो एडवांटेजेस है ना, ये लोकलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, अगर उसका जो फाइनेंशियल डेटा है या प्राइवेट डेटा है, अगर वो इंडिया में स्टोर्ड रहता है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा और आपकी सोवरेनिटी के लिए भी अच्छा होगा। सो प्राइवेसी इसमें आती है। देन योर नेशनल सिक्योरिटी, राइट, देन योर सोवरेनिटी। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी। And this makes the service provider the service provider accountable। अगर उसका डेटा इंडिया में स्टोर रहेगा तो हमेशा अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी उसकी, वो जिम्मेदारी रखेगा, और क्योंकि उसको डर रहेगा कि यहाँ कभी भी उसका डेटा एक्सेस हो सकता है, या फिर उसका डेटा जो स्ट्रीम हो रहा है, जो पाइपलाइन है उसके डेटा स्ट्रीमिंग की, वो कभी भी बंद की जा सकती है। राइट, तो ये एक इनहेरेंट एडवांटेज है इस पर्टिकुलर बिल से। देन few more advantages like fake news। तो जो डेटा वेरिफिकेशन का जो क्लॉज है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपना डेटा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यूजर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो यूजर वेरिफिकेशन से वो क्या कर सकते हैं,
सबसे पहले तो जो साइबर स्टॉकिंग होती है, राइट, दे कैन दिस कैन प्रिवेंट साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स हैं, आपके आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, यू कम क्लोजर एंड दे ऑलवेज टॉक यू, राइट, दे डाउनलोड योर फोटो, दे कीप अ स्क्रीनशॉट्स। तो वो सारी चीजें जो फेक प्रोफाइल्स के बनने से होती है, यूजर वेरिफिकेशन के होने से वो खत्म हो जाएंगी। इट विल प्रिवेंट साइबर स्टॉकिंग, इट विल प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट विमेन। क्राइम अगेंस्ट विमेन, देन ट्रोलिंग, प्रिवेंट ट्रोलिंग, जो कि फेक अकाउंट से बहुत ज्यादा होती है, कि अननेसेसरी ट्रोल किया जाता है सेलिब्रिटीज को या फिर नॉर्मल लोगों को जो अपना व्यूज रख रहे हैं। सो ट्रोलिंग इससे कम होगी। ठीक है। और फेक न्यूज भी, ये सब चीजें इससे कम हो सकती है। तो ये बात हुई। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एक एडवांटेज और देख लेते हैं, साइबर अटैक्स, ये भी होगा। साइबर अटैक्स, अगर साइबर अटैक्स जैसे अभी एक न्यूज में आया था कि इसराइल के एक हैकर ने व्हाट्सएप को हैक कर लिया था। ठीक है, तो जैसे उसका नाम था पीगेजस। तो पीगेसस वाज इजरायली हैकर, उसने पीगेसस हैक्ड व्हाट्सएप, और उसने बहुत सारे व्हाट्सएप अकाउंट इंडिया में हैक किए थे, और उसके बाद बहुत सारा डेटा वहां से चुरा लिया गया था। तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं साइबर अटैक्स, सो उससे प्रिवेंट कर सकता है ये। ठीक है, बिकॉज सेंसिटिव डेटा जो है, और जो जो क्रिटिकल डेटा है, और जो पर्सनल डेटा है, उसमें भी कंसेंट क्लॉज आ जाता है। तो कंसेंट के बिना अगर आप उसको शेयर करते हैं तो फिर वो शेयर नहीं होगा। द कंपनी कैन नॉट शेयर द डेटा। ठीक है। नाउ विल कम टू द डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट डिसएडवांटेज is data localization. Data localization, sorry, डेटा लोकलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि भले ही आप डेटा को इंडिया में स्टोर कर लेंगे, बट द इंक्रिप्शन कीज में lie अब्रॉड। तो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन इंडिया, बी स्टोर्ड लोकली, बट द इंक्रिप्शन, यानी जिससे वो डेटा को आप, जो कोडेड डेटा होता है उसको आप डिकोड करते हैं, उसकी जो की होती है, जो जिसको आप डिक्रिप्शन की बोलते हैं या इंक्रिप्शन की भी बोल सकते हैं, बट द इंक्रिप्शन की may lie overseas। तो उसके डेटा के स्टोरेज का कोई फायदा नहीं अगर उसका इंक्रिप्शन की कहीं बाहर स्टोर्ड है, तो वो फिर भी बेकार रह जाता है। ठीक है, तो डी कोड आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज, नेशनल सिक्योरिटी, जो मैंने पहले भी बताया, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी जो है, ये थोड़े से ब्रेक टर्म्स हैं। आर वेग एंड ओपन एंडेड टर्म्स, ये ओपन एंडेड है, मतलब क्लियर कट इसके अंदर डेफिनेशंस नहीं है। lead to will this can lead to right, this can lead to the unnecessary प्राइवेसी वायलेशन। मतलब हो सकता है कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेसी में दखल या प्राइवेसी को वायलेट करने के लिए या किसी फायदे के लिए, किसी इंटरेस्ट के लिए इन सारे टर्म्स का यूज कर कर वो आपका डेटा निकाल सके, राइट। तो इसको थोड़ा सा और डेफिनेशन की जरूरत है। एंड द थर्ड
disadvantages uh, will block innovation in field of technology, right? So this is protectionist approach. तो ये जो इंडिया की जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है, ये शायद टेक्नोलॉजी इनोवेशन को हो सकता है कि थोड़ा सा डिटर करे, उसको डीमोटिवेट या डिस्करेज करे। जैसे फेसबुक ने इसके ऊपर आप एग्जांपल डाल सकते हैं। फेसबुक ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि इंडिया में जो ये बिल या फिर डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा इनोवेशन कहीं ना कहीं डिस्करेज हो सकता है, राइट? Lastly, it can be detrimental to Indian IT startups. इंडिया में जो इतना सारा आईटी में स्टार्टअप्स खुले हुए हैं और जो डिजिटल इंडिया है, जो पूरा कैंपेन है, उसमें जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो छोटी छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे वो मार्केटिंग भी करते हैं, उसको यूज भी करते हैं, उनके लिए डेट्रीमेंटल है। तो छोटी छोटी कंपनीज के ऊपर अगर ये लोड डाल दिया जाएगा कि यू हैव टू स्टोर डेटा इन इंडिया एंड यू हैव टू कीप डेटा, यू हैव टू टेक परमिशन, यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ पब्लिक, तो वो थोड़ा सा स्टार्टअप्स को डिस्करेज कर सकता है और उनके लिए एक एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा इसको इसको ओबे करना या इसको कंप्लाई करना, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी कम होती है उन स्टार्टअप्स की। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, right, it decreases, and then market भी also become controlled। तो मार्केट में जो कंट्रोल होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो कंट्रोल्ड मार्केट कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता है, दिस इज अगेन दी जनरल रूल इन इकोनॉमिक्स। तो ये भी है। और दूसरा, जैसे हम लोग बिजनेसेस में पढ़ते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहाँ पर होता है कॉस्ट, स्पीड, प्रॉफिट। तो in IT sector, it is always cost, speed, and profit. If your speed is good, your cost will be low and your profits will be high। ठीक है, तो जितना स्पीड अच्छी होगी आपके डेटा प्रोसेसिंग की, जितनी जल्दी आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उससे आउटपुट्स निकाल कर आप अपने स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज भी कर रहे हैं, तो उससे आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं। और इंडियन कंपनीज की उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगी अगर उनके ऊपर इतना सारा जो प्रेशर डाल दिया जाएगा ऑफ एनालाइजिंग डेटा, कंसेंट, और हैव टू शेयर डेटा विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक तरह से थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएंगी, राइट? तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल।
बाकी सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस इस पे अभी आई नहीं है। तो जब सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन पूरे बिल को पढ़ने के बाद आ जाएंगी, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लेना हमको, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो भी बड़ी वैलिड होती हैं, और वो सरकार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है किसी भी बिल के सामने। क्योंकि बिल जो है एक पर्टिकुलर कमेटी द्वारा बनाया गया है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिसिंग होंगे, तो सिलेक्ट कमेटी अपने भी कुछ रिकमेंडेशन उस पर रख देगी, और उसके बाद ये बताएगी कि कितना पॉलिटिकली या सोशली वायबल हो सकता है ये बिल, और कौन कौन से फीचर्स इसमें मिसिंग है, और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है।